SG Consultancy Services. Study MBBS in Russia, Philippines, Uzbekistan. आपका बहुत रील्स देखा, स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है. हाउ डिड यू गॉट दिस रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन सर to the youth? You're giving with your life also you're giving a strong message to the youth. How did you started this? या जस्ट लाइक आज अगर एवरीडे अगर बात करें तो हमारे जो देश की सड़कों का हाल है, शाम के वक्त हो रहे हैं एवरीडे, मतलब 1300 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. हाँ. जिसमें शाम होते होते 500 चिताएँ, मतलब 500 लोगों की डेथ होना, शमशान घाट में लाशें जलना. दिस इज़ द बिग लॉस. ये हमारे कंट्री के लिए. और 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 20 लोगों की डेथ हो रही है, और उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं. तो यही है कि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है. युद्ध इसलिए कि इतनी मौत, जो 2 लाख जो आंकड़े हैं हमारे इंडिया के, 3.5 लाख लोग घायल, इतनी मौत 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी. आज बिना किसी युद्ध के भारत की सड़कों पर हो रही है. तो जो मेरा मोटिवेशन है, एक जस्ट लाइक मैं एक वार, एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि अपने भारत के यूथ को और उन परिवारों को जो इस आज़ाद भारत के अंदर खुशहाल होने का हक है, वो हक देने के लिए. क्योंकि 11 वर्ष पहले मैंने अपने मित्र को खोया एक हेलमेट ना होने की वजह से. और यही है कि मैं अपने मित्र की तरह किसी और को नहीं खोना चाहता हूँ, और भारत के प्रत्येक नागरिक को एक मित्र बनाकर इस अदृश्य युद्ध पर एक विजय देना चाह रहा हूँ अपने राष्ट्र को, भारत को. It was a great motivational to the everyone. And also what you started is going on. बहुत अच्छा సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నందకిషోర్ గారు, అంటే మీరు తెలుగువారు, అంటే మెయిన్గా ఒక ఫిలిం తీయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది కూడా హెల్మెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రాఘవేంద్ర కుమార్ గారు బయోపిక్కే తీయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? వాట్స్ ద మెయిన్ రీజన్? ఫస్ట్ ఏంటంటే, మూవీస్ అంటే మనకి చాలా ఇష్టం. అండ్ మూవీస్తో పాటు ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఏమైనా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అని ఒక థాట్ ఉండేది. అది చాలా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. రెండింటిని ఆలోచించి మనం, అంటే నేను ఫస్ట్, ఇది నా లాంచ్ ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి, సో చాలా కాన్సెప్ట్స్ చూశాను. చూసిన తర్వాత ఏదైనా యునీక్గా ఉండాలి అని అనుకున్నాను. యునీక్గా చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఎందుకో మరి భగవంతుడు మరి ఇలా కనెక్ట్ చేశాడేమో తెలీదు. సో నేను మా టీంతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్రసాద్ గారు, ప్రియదర్శిని అండ్ ధర్మేంద్ర గారు, వినయ్ గారు అందరం డిస్కస్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదో దీన్ని స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసి మూవీలాగా తీసుకొద్దామా అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు నాతో డిస్కస్ చేశారు. నేను కూడా ఓకే అనిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు మలయాళం మూవీస్ చూసుంటుంటారు, తమిళ్ మూవీస్ చూసుంటారు. మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మ్యాక్సిమం కమర్షియల్ పెద్ద బిగ్ బ్యానర్ ఉంటాయి. మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంచుకున్నారు, బయోపిక్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అని అడగచ్చు. సో ఏంటంటే, నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మలయాళంలోని చిన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని చాలా బాగా డెవలప్ చేస్తారు దాన్ని. అది అందులో మెసేజ్ ఉంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అందులో యాక్టర్స్ అవన్నీ చూసారంటే కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది. చాలా మనకి నెక్స్ట్ డోర్ బాయ్, నెక్స్ట్ డోర్ గర్ల్ అన్నట్టు మనకి ఆ మైండ్లో అలా ఉండిపోతుంది. సో అలా మనం ఎందుకు చేయకూడదు తెలుగు వాళ్ళు అని అనుకున్నాను. సో నాకు స్టెప్ వేసే ఛాన్స్ దొరికింది, నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు వీళ్ళు. సో అందుకని ఇది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఏదైనా సరే పెద్ద ప్రాబ్లము చిన్న దీంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, హెల్మెట్స్ పెట్టుకోకుండా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నా అనేది ఇట్స్ వెరీ కామన్, చాలా కామన్. అండ్ మీరైనా నేనైనా ఎక్కడికైనా చిన్న షాప్కి వెళ్ళడానికి పెట్టుకోము, వీధుల్లో తిరగడానికి జస్ట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే 30 స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళాం కాబట్టి అది పెద్ద డేంజర్ ఉండదు. కానీ మెయిన్ రోడ్స్లోకి ఎక్కినప్పుడు మినిమం 40 స్పీడ్లోకి వెళ్తే యాక్సిడెంట్స్ మనం కరెక్ట్గా వెళ్ళినా సరే ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, వెనక నుంచి వచ్చి కానీ పక్క నుంచి వచ్చి నువ్వు కట్టుకొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మనకు తగిలి హెడ్ ఇంజురీ అనేది చాలా అది కాస్ట్లీ ఇంజురీ అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, ఈ ప్రాబ్లం మీరు లాస్ట్ 5-10 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాం. మనకి మోడీ గారు గవర్నమెంట్
నార్మల్ కామన్ ప్రజల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సత్కరించారు. Yeah. పద్మశ్రీలు అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు. Hmm. సో ఏంటంటే ఇలా కామన్ మ్యాన్లోనే ఎంతోమంది ఆనిముత్యాలు ఉన్నారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి అంటే ఆడియన్స్ మనకి మూవీ అంటే ఇష్టం ఉన్న ఆడియన్స్కి వెళ్ళి చూపెట్టి కొంచెం అందరికీ బాగా అర్థమయ్యేలాగా వెళ్ళి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అన్న ఒక్క విజన్ ఒకటి ఉంది. ఓకే. అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నా స్వార్థం నాకు ఉంటుంది. సో నేను ఆంటర్ప్రినర్, ఇన్వెస్టర్, Yeah. సో మ్యూచువల్లీ బెనిఫిట్. Yeah. సో వాళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీ కావాలి. డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు బాగా సో అదే తీసారంటే ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ Concept. రావాలి. అది కూడా Exactly. హెల్మెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా రాఘవేంద్ర కుమార్ గారి స్టోరీతో వస్తే దట్ వాస్ డిఫరెంట్ లాంచింగ్ అనుకున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. యా, సూపర్ సార్. కానీ ఒక మంచి ప్రయత్నం అనేది కూడా చేయబోతున్నారు. యా सर, आपकी तरफ से ये पहले नंदकिशोर साहब आए तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है सर? ये तुम्हारा कहानी ये लोग मूवी से आए तो ऐसा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? नहीं, एक तो मैं थैंक करता हूँ, एक तो बचपन से जो तेलुगु मूवी देखा करता था, बड़ा अच्छा लगता था एक्टर को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थैंक्स फॉर द धर्मेंद्र बघेल जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ओके. उनसे बात हुई. बट मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कि अभी मेरी लड़ाई चल रही है Yeah. क्या एज अ फिल्म, मतलब चीज़ों को, क्योंकि मैं खुद ही एक जंग लड़ रहा हूँ और एक अलग वो चीज़ है. तो बट उन्होंने जिस तरीके से मेरी ही स्टोरी को चीज़ है उन्होंने कंपेयर किया कि और भी पहले भी जो स्टोरी है फ्रेंड्स के ऊपर, एक हाँ. मदर के ऊपर, ऐसे भी बहुत सारी. तो फिर मैं लगा ठीक है, दैट्स फिर यहाँ पर हैदराबाद आने के बाद प्रसाद सर से मिला. हाँ. नंदकिशोर सर इज अ गुड मैन, सारा चीज़ है. फिर विनय, मनोज सर, प्रियदर्शनी जी, तो एक ऑल टीम ऐसा लगा कि जस्ट लाइक वी आर ए बेस्ट फ्रेंड. मतलब हम आई थिंक बहुत पहले से ऐसे दोस्त थे, ऐसा लगा मिल करके. और फिर दूसरी चीज़ की जो मेरी भी कहानी है हैदराबाद, मतलब ये यहाँ के जो स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी 2014 से स्टेट बना. Yeah. और 2014 से मेरी सड़क दुर्घटना की एक लड़ाई मिशन की शुरुआत किया. तो कहीं ना कहीं इस स्टेट की जो प्रगति है तेलंगाना की, Yeah. और एक मेरी एक लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं एक संदेशा भी रहता है. दोनों मैं भी जो इंसिडेंट्स एक ही Exactly. टाइम में स्टार्ट हुए ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक रहता है कि मेरा नाम भी जैसे राघवेंद्र है, वो अलग बात है. यहाँ राघवेंद्र टेम्पल है जो स्वामी भी जो कहीं ना कहीं एक रहता है. तो आई थिंक डेस्टिनी उन्होंने चुना हो. और क्योंकि यहाँ की जो अपनी साउथ की जो भी फिल्में होती हैं वो बड़ा विजनरी होती हैं, वो यूथ के ऊपर पूरा एड्रेसिंग करती हैं. और किसी भी मतलब हमारे कल्चर्स को देखिए जो विलुप्त हो रहा है उसको वो जीवित रखना, और हमारे देश के प्रगति के लिए मतलब वो पिक्चर सोच करके बनाना. हाँ. क्योंकि आज भी हम अपने भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में जब भी कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है. तो कहीं ना कहीं फिल्में तो बहुत तरह की वो चीज़ें हैं, लेकिन जो देश के विकास के लिए इस तरह की चीज़ें, जो मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, भारत के 1.4 बिलियन नागरिक हैं, Yeah. वो किस तरीके से एक योद्धा बने. और जब उन्होंने सर ने बताई वो चीज़ें धर्मेंद्र बघेल जी ने कि नहीं इस तरीके से, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है. आई एम लकी पर्सन, और एक्साइटमेंट भी है कि नहीं ठीक है, आई थिंक कर सकते हैं. तो बस यही है कि आने वाले समय में जो मैं अभी सड़कों पर एक अकेला लड़ाई लड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी थिएटर के माध्यम से और इस मतलब एक इंडिया के अंदर एक बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पिक्चर ही नहीं, ये पिक्चर एक रिवोल्यूशन है. क्योंकि आज जो भी एक लड़ाई है, चाहे देश एक कॉमन मैन ही करता है. आज भारत की प्रगति के लिए चाहे हम चंद्रमा पे जाने की बात करें या किसी भी चीज़ में या वर्ल्ड में कहीं भी, एक नॉर्मल कॉमन मैन ही एक क्रिकेटर रही है, कुछ भी चीज़ें बनता है. तो जस्ट लाइक मैं भी एक कॉमन मैन हो सकता है. ये इस फिल्म के माध्यम से हमारा आज़ाद भारत, एक खुशहाल भारत की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सके. ते बायोपिक का पहले क्या कहानी हो गए तो अब बात किया. सो आई हैव टू आस्क यू वन थिंग सर. तो तुम्हारा पहले हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो उसी टाइम में पब्लिक से कैसा रिस्पॉन्स आया सर? एक्चुअली हमारे इंडिया में जब भी अगर रोड सेफ्टी की बात करें या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो बड़े लोग लाइटली लेते हैं. और आज देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएँ जल रही हैं, उनमें से कितने लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहे हैं. तो मेरी भी जो एज उस समय जब 11 वर्ष पहले अपने मित्र को खोया था, जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के मिन्नतों के बाद हुआ था. और मेरे लिए वो पेन था, एक माँ से एक वादा, एक दोस्ती का, क्योंकि आज अपने जीवित दोस्त से न जाने कितने वादे करते हैं, भूल भी जाते हैं. हाँ. लेकिन जो दोस्त को हमने वचन दिया था, दुनिया के लिए भले ही मर चुका है लेकिन मुझे उसे जीवित करना था. तो मेरी लड़ाई ही थी
कि मुझे जो मेरा ये है कि अपने दोस्त को जीवित रखना है, और जो माँ के आंखों में जो आंसू की जगह पर वो रक्त के आंसू थे, तो इस तरीके से जो पीड़ा है किसी और परिवार के साथ ना हो। तो जब ये इंटेंशन लेकर के आप सड़क पे एक लड़ाई लड़ने के लिए उतरते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी आपके बारे में ऐसा सोचे। उसका ये है कि बस डेस्टिनी दूरी तय करनी है, आप हेलमेट क्यों दे रहे हो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। बट अगर आप किसी को सड़क पर एक फ्रेंड्स के लिए इनवाइट करें और बदले में कुछ हेलमेट दें, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान इंस्पायर होगा। वो सोचेगा अरे दिस इज़ द गुड थिंग। बट ये कि अब अगर आप किसी को हेलमेट दे रहे हैं, वो एवरीडे न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है, हर चीज़ को, दुर्घटनाओं को देख रहा है और समझ रहा है कि भाई भगवान भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति एज ए मित्र को खोने के बाद मुझे हेलमेट दे रहा है, और ऐसे जो लोग बिना हेलमेट के दूसरे लोगों की डेथ हो रही है, मैं खुद देख रहा हूँ न्यूज़ में, यानी कि ईश्वर भी चाह रहा है कि मैं आज वो चीज़ें रहूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी सोच बदलती है। मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, बट लोगों से ये चीज़ करता हूँ कि आपके पास ऑप्शन है। तो वो धीरे धीरे चेंज हुआ, लोगों के थॉट्स। हेलमेट देने से कई लोगों की लाइफ भी बची, तो मेरे पास भी आए। उनके लिए मैं एक अलग मतलब गॉड की तरह दिखाई देने लगा, या वो चीज़ें करने लगा। और ये धीरे धीरे जो थॉट्स होते हैं ना, दूसरों के पास जाने का क्रम में, और वो उनसे इंस्पिरेशन मिलना कि हाँ गुड कॉज। पहले तो बेवकूफ़ी भरा वर्क था, ठीक है ना, बड़े वैसे चैलेंजेस। बट जब आप रिजल्ट कोई चीज़ देखते हैं ना, और उसका लगता है कि नहीं आप कुछ एक अलग आपकी डेस्टिनी चाह रही है, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग भी आपके मित्र बन रहे हैं, तो लोगों की सोच बदलती है। बट फर्स्ट टाइम द वेरी डिफ़िकल्ट, आपके लिए चैलेंज भी है, लोगों के थॉट्स का भी बदलना। और हमारा भारत भी इतना बड़ा है, एक समुद्र की तरह है, तो उसमें आपकी जो आइडियोलॉजी है, मैं सोचा कि सामने वाला क्या एक्सपेक्टेशन करेगा। बस अपनी एक लड़ाई है 1.4 बिलियन तक पहुंचने के लिए, आपकी अपनी जो शक्ति है उसे मजबूत रख करके चलते रहना है। सर यू आर अ ग्रेट मैन सर। क्यों मतलब ये स्टार्टिंग डेज में ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम बात किया ना, तेरे पागल है क्यों दे दिया हमको, ऐसा बात करेंगे, तो उनको रिजल्ट्स देने के बाद जी, उनको भगवान है सर। एग्जैक्टली। So really you are a very great giving a motivation to the other people also. So it was nice sir. Sir యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ మనీ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు, ఏదైనా చేయాలి అని. సో అల్టిమేట్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒక మంచి స్టోరీ సాటిస్ఫాక్షన్తో పాటు అమౌంట్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈయన స్టోరీలో మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఇదే బయోపిక్గా తీయాలి, ఇదేరా బై అని చెప్పేసి అనుకునేది ఎప్పుడు? అసలు ఇలా హెల్మెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, డొనేట్ చేయాలన్న ఇండియాలోని ఎవరైనా చేశారా ఇది వరకు? మనకు తెలియదు. హీఈస్ ద ఫస్ట్ టైం, హీఈస్ ద ఫస్ట్. ఈయననే మొదటి, అండ్ ఈయన తర్వాత ఎవరు వచ్చినా సెకండ్. సో ఈయన ఏదైతే ఒక మైల్ స్టోన్ పెట్టారో అదే నాకు ఇన్స్పిరేషన్. యూనిక్, హీఈస్ యూనిక్. ఎందుకంటే మామూలుగా చూసుకుంటే హెల్మెట్స్ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఏంటి, ఏం పని పాట లేదా అని అనుకుంటాం. స్టార్టింగ్ డేస్లో అదే అనుకుంటాం. అండ్ ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగులుంటాయి. ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్ అనేవి ఇట్స్ కామన్. మనం ఏదైనా మంచి పని చేయాలనుకుంటే 10 మంది వ్యతిరేకించే వాళ్ళే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈయన లైఫ్లో నేను కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పాడు. ఆయన చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, మన సోషల్ మీడియాలో చూసినవి కూడా అనిపించింది ఏంటంటే, అసలు ఏ మంచి చేయాలనుకున్నా సరే మనల్ని పీస్ఫుల్గా ఉండనివ్వరు. ఈయన ఇంకా ఇదే పనిగా పెట్టుకుని చేశాడంటే హీఈస్ యూనిక్. సో దీన్నే ఎందుకు ఎంచుకున్నాను అనుకుంటే, బికాజ్ ఈయన బయోపిక్ని వేరే ఇంకెవరు తీయకుండా ఐ వాంట్ టు బీ ద ఫస్ట్. అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మన గవర్నమెంట్ అంతా కామన్ మ్యాన్ని సత్కరిస్తుంది అని చెప్పి. సో నేను ఐ వాంటెడ్ టు, నేను ఈ కామన్ మ్యాన్ని, హీఈస్ నాట్ ఎ కామన్ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ, కానీ మనలో చూశాడు బియాండ్ దట్, హీ హాస్ క్రాస్ దోస్ బౌండరీస్. సో అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్. అది సో నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను, నా టీంని బిలీవ్ చేస్తున్నాను. వీళ్ళు కాన్సెప్ట్ మీకు మామూలుగా అనిపించవచ్చు, చాలా ఆర్డినరీ కాన్సెప్ట్, కానీ ఇది 2.5 hours మూవీలోని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి తీయాలి అంటే ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్. సో ఆడియన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ సీట్లో కూర్చుని 2.5 గంటలు చూడాలి అనేది, దాన్ని స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేసి ఆ డైలాగ్స్, ఆ కామెడీ అండ్ అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి పెడితేనే ఒక మూవీ అవుతుంది. సో నేను వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేశాను, వాళ్ళకి అప్పచెప్పాను. అండ్ నాకు ప్రస్తుతానికైతే దీనికంటే బెటర్ కాన్సెప్ట్ నాకు కనపడలేదు. మేబీ ఉండుంటాయి ఫ్యూచర్లో, మేబీ వస్తుండొచ్చు. బట్ ఇది మాత్రమే మై లాంచ్, యూనిక్ నాకు ఫస్ట్. అండ్ హెల్మెట్ మ్యాన్ అనే
వ్యక్తిని మీరు ఇంకెవరినైనా నాకు చూపెట్టండి ఇండియాలో, నో సార్, ఎక్కడ లేరు. ఓన్లీ రాఘవేంద్ర కుమార్ గారే. అంతే. Yeah. అందుకని You choose ఇది this. ఎంచుకున్నానా. Okay. सर आपका गोल क्या है सर, बताओ. गोल सर यही है कि इंसान है, मरने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ते हैं. Right. वो है माँ. और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एवरी ईयर जो डेथ हो रही है, ये 2 लाख लोगों की, 3.5 लाख लोग घायल होना, तो सबसे ज़्यादा बलिदान माँ ही दे रही है. और हम 2 लाख के मौत के आंकड़ों में जो 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, और उनमें से मेरा मित्र भी था. तो मुझे ये था कि जो माँ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रही है, वो सुरक्षा के लिए भागे. क्योंकि आज भी जो मेरे दोस्त की मदर है, अपने बेटे की तस्वीर लेकर के तकिए में सोती रहती है, एवरीडे स्लीप. बट नो एनीबडी, किससे कंप्लेन करे वो. भगवान को भी, मतलब वो भगवान ने तो उसको 20 साल बाद पुत्र दिया, हाँ. लेकिन वो भी छीन लिया. तो जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है. और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, लोगों ने सुना. मेरे भी दोस्त के मरने के बाद मैं भी चाहता तो गूंगा बन सकता था, लेकिन मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया. एक लड़ाई लड़ा, और इस लड़ाई में जब मैं उतरा तो मतलब मुझे पता था कि कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा. और जो मैंने अपने दोस्त से वादा किया है, जब तक मेरी लाइफ है तब तक लड़ूंगा, और उसके लिए सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी आज खड़ा हूँ. तो यही मेरा मकसद है कि हर माता को संदेश देना कि जिस तरह से अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भागे, और वो कम से कम इस मेरे दोस्त के परिवार में जो गम है वो किसी और के परिवार में गम ना आए. अभी अब तक कितना हेलमेट्स डोनेट किया सर? अभी जो पिछली 11 वर्षों में 22 राज्य का जो भ्रमण किया, उन सड़कों पर 70,000 से अधिक हेलमेट बांटा हूँ, और उनमें से 40 लोगों की ज़िंदगी बचाए हूँ, और 40 सिलसिला अभी भी जारी है. 22 రాష్ట్రాల్లోని 70,000 హెల్మెట్లని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు, డొనేట్ చేశారు. ओके. सो स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा. हाँ, नोएडा में मेरे फ्रेंड्स की रोड एक्सीडेंट नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ था, और देन उसकी एक्सीडेंट मार्च में हुआ था, 28 मार्च को. फिर अप्रैल में डेथ हुआ. उसके बाद 1 मंथ बाद फिर घर जाने के बाद फिर शुरुआत कर दिया मैंने. सर इसी वादा स्टार्ट किया तो उसी टाइम में फैमिली का रिएक्शन क्या है सर? माई फैमिली, हाँ. माई फैमिली तो इसके लिए फर्स्ट इनिशियल टाइम में तो मैंने शो भी बताया भी नहीं. उनको न्यूज़ के माध्यम से पता चला हाँ. कि मतलब आपका सन जो है वो इस तरह का कर रहा है. तो किसी भी फादर के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है कि जो सपने लेकर के एक आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं शहर में, आप अपने ड्रीम्स का, मतलब एक माता पिता आपको एक आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, yeah. और आप इस तरह के कार्य में, मतलब क्या है उनके लिए एक शॉक्ड होना, सब चीज़. लेकिन अगर आप, ये होता है कि आपकी सही दिशा है और आप सही कर रहे हैं, तो माता पिता धीरे धीरे, उस समय तो उनका काम था समझाना, लेकिन जब दूसरों के माध्यम से, न्यूज़ मैगजीन के माध्यम से जब वो पढ़ते थे, हाँ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन वो चीज़ें था. तो कहीं ना कहीं इसमें मैं फैमिली, मतलब मेरी वाइफ का भी अगेंस्ट थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जब ज़िंदगी बचने के बाद लोग घर तक आ रहे हैं, मतलब उनकी नज़र में मैं एक आम इंसान नहीं रहा, एक बल्कि कुछ एक अलग ही इंसान दिखाई दे रहा हूँ. तो लगता था कि आप एक अच्छा, मतलब जो पोटेंशियल, जो अपना समय दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, अच्छे जगह पे दे रहे हो, तो फिर भी इस कार्य में जैसे घर का बिकना, ये सारा चीज़ होना, वाइफ की ज्वेलरी नीलाम कर देना. हाँ. अगर मैं दुनिया को मित्र बनाने निकला पड़ा हूँ, अगर अपने घर वालों को ही, अगर वाइफ ही मेरी एक अच्छी मित्र नहीं है, तो अदरवाइज मेरा मिशन फेल है, yeah. कोई उसका नहीं है. बट इस मिशन में उनका भी साथ होना, उनका भी त्याग देना, तो ये मेरी अचीवमेंट है. और मुझे दुनिया को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं थी कि जो मैं कर रहा हूँ गलत. दुनिया भले ही मुझे पागल कहे, yeah. लेकिन अपने मदर फादर की नज़रों में आप हीरो हैं, अपनी पत्नी के लिए हीरो हैं, अपने बेटे के लिए वो चीज़ है, तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर यही लड़ाई, क्योंकि मुझे उस न्यूक्लियर फैमिली को ही सेव करना है कि जो कि आए दिन हादसे में सड़क के शिकार हो रहे हैं. बहुत जो ऐसे महिला हैं अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए ट्रामा सेंटर में, क्योंकि हमारे भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, ना कोई सेविंग मनी होती है. मोबाइल फ़ोन भी टूट जाता है तो दूसरे से उधार लेके बनवाना पड़ता है. लेकिन वो जब अस्पताल में जाते हैं, घर का मुखिया पड़ा रहता है आईसीयू में, और वो पत्नी तन के जेवर बेच रही है, इधर उधर पैसे उधार मांग रही है, सिर्फ डॉक्टर की एक बात पर कि आप भगवान पे भरोसा रखो, वो कर्ज लेकर के वो 50 रुपये, मतलब फिर भी पति की जान बचाने के लिए मेहनत करती है, और फिर भी जब फाइनली रिजल्ट उसके पति की जान नहीं बचती है, एक कर्ज में डूबी रहती है. वो मार्केट से जा कर के जहर खा करके अपने बच्चों को भी सुला दे रही है. वो मौत को गले लगाना उसे फिर आसान लगता है. तो इस तरीके से हमारी जो भारत
जो है सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही है। हम तो सिर्फ आंकड़े तक ही साल भर के सीमित हैं, लेकिन उन परिवारों में अपनों को खोने के बाद क्या दशा है, इसको कोई नहीं पहचान पा रहा है, न इसको समझ पा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़कों पर हेलमेट बांट रहा हूँ, मेरी उन पीड़ित परिवारों से भी मिलना, उनको इस युद्ध में लेकर के आना और एक मतलब एक वार की तरह लड़ना, Yeah. तो कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है कि ईश्वर ने जो आपको चुना है और जो आपको डेडिकेशन, पैसन, आपके घर, फैमिली सब देख रहे हैं, तो आई थिंक लगता है कि ऐसे बंदा हमने देखा ही नहीं, और जो कर रहा है इसको छेड़ो भी मत, इसको रोको भी मत, बस आगे जाने दो। यू आर ए लकी मैन ऑल्सो सर। Thank यो you. मतलब तुम्हारा फैमिली के साथ से Right. सपोर्ट भी आ गया, बिल्कुल या उसी सपोर्ट है तो अभी हाँ. ये चल रहा है। राइट। That's nice, sir. We have to say special salute to your family also. Really, convey my wishes for them also. Really, sir. And sir, ఈ మూవీ అనేది ఓన్లీ తెలుగులోనేనా లేకపోతే అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ చేద్దాం మల్టీలింగ్వల్ Multilingual. డబ్ చేసి అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఓకే, అంటే లైక్ పాన్ ఇండియానా? పాన్ ఇండియా. ఓకే. సారీ, మరి ఎప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ అండ్ ఎవరు యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి? కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే. కాకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఎవరు యాప్ట్ ఉంటారో అనేది డిస్కస్ చేసి ఫైనలైజ్ చేస్తాము. సో ఇంకా అది ఏం డిసైడ్ చేయలేదన్నమాట. వీళ్ళు ఉన్నారు కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం యాక్టర్స్ని. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి ఏదో అడిగారు క్వశ్చన్. అంటే మీరు తీసుకున్నది కూడా ఒక నార్మల్ స్టోరీ మాత్రం కాదు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ బికేమ్ ఏ సూపర్ మ్యాన్. సో మన మధ్యలోంచి వచ్చిన ఒక సూపర్ మ్యాన్ లాంటి పర్సన్. మరి అలాంటిది సినిమాటిక్గా ఎలా మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తారనేది వీఆర్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఇట్. డెఫినెట్లీ నేను ఐఎమ్ ట్రస్టింగ్ మై టీమ్. యా, వాళ్ళు బాగా చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను. మనం కూడా మన ఆడియన్స్కి, తెలుగు ఆడియన్స్ అండ్ పాన్ ఇండియా ఆడియన్స్కి మంచి మూవీని, మెమరబుల్ మూవీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెసేజ్ ఇవ్వగలిగిన మూవీ మనం తీయాలి, ప్రజల ముందు ఇవ్వాలి అని నేను ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం. ఓకే, చూద్దాం. అండ్ అంటే సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆయన స్టోరీలో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దర్. అండ్ ఒక ఫ్యామిలీ గురించి అయినా కానీ, సో ఆయన ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ కానీ, సో ఒక ఫ్రెండ్ అనేది చనిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక యుద్ధంలా తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కానీ, సో దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఆర్ దర్. ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్తో Yeah. ముడిపడి ఉంది. మనకి కొన్ని సీన్స్ చూస్తే అవి మనకి అలా గుచ్చుకుంటాయి మనకి, Yeah. మన చర్మానికి, హార్ట్కి. ఆ పెయిన్ అనేది ఇట్ షుడ్ క్యారీ. మనకి ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత హెల్మెట్ బండి తీస్తేనే ఇంక మనకి హెల్మెట్ గుర్తుకు రావాలి. యా, అలాగా అంత కాన్సెప్ట్ అంత సీరియస్గా దీన్ని చిత్రీకరిందామని వీళ్ళు చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. యా, సో ఒకటి కామెడీ, మనకి కామెడీ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఉగాది పచ్చడిలో ఉండాలి, యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సింపుల్గా మన చెప్పాలి. తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పాలంటే తెలుగు ఉగాది వాళ్ళకి పచ్చడిలా ఉగాది ఉండాలి. పచ్చడి. సో కామెడీ, సీరియస్నెస్, ఇది ఎలాగా యాక్సిడెంట్స్ అవన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఓవర్ నైట్ ఎలా రోడ్డు మీద పడిపోయి అన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తారు. అవి కూడా ఉంటాయి మూవీలో. మన గుండెకి హత్తుకుపోయే హత్తుకునేలాగా సీన్స్ ఉన్నాయి. ఉంటాయి. అండ్ వీటిలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రెడీ చేశారు. చేయాలి అని. సో ఇంకొకటి నేనేంటంటే ఈ డైరెక్షన్ అండ్ స్టోరీ, స్క్రిప్ట్ వీటిలో అసలు నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వదలుచుకోలేదు, అవను జస్ట్ తెలుసుకుంటున్నా. నాకు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఫీల్డ్, అది యా, జస్ట్ నేను ఉన్నాను వాళ్ళతో యా, అంతే. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఓకే. సో ఐఎమ్ ట్రస్టింగ్ దెమ్. सर आपका लाइफ में सो अनमेमोरेबल डे मतलब क्या है सर? देखिए, एक सामान्य नागरिक अगर मरता है तो 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है, और बाइक के ऊपर जो 2 लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए, और भारत की जो जीडीपी का नुकसान होना, और इस तरीके से मतलब जो आने वाले भारत की अगर देखा जाए एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम कल्पना, जो आज के डेट में जो बच्चे हैं, युवा हैं, इन्हीं को अपने कंधे पर भारत को लेकर के चलना है। और जिस तरीके से हम जो पेरेंट्स घर वालों के प्यारे, जैसे पुणे का एक्सीडेंट देखते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी, सारा चीज़ें दे देना, यूथ को मारना, तो ये 2 लाख लोग इंसान नहीं, 2 लाख स्किल मैन पावर भी वो चीज़ें हम कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि एक आम नागरिक की बात है, हम अपने देश के इतने बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री को भी देखें, 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाए।
मगर वो एक उनकी छोटी सी गलती पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। हाँ। और ये भारत के लिए सबसे बड़ा लॉस है। हमारे देश की प्रेसिडेंट मैम, उनको देखिए वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई। तो ये जो मेमोरेबल जो लाइफ है ना, अगर आप एक भी, मेरी तो लड़ाई थी कि एक भी अगर लाइफ सेव कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा है। लेकिन अब क्या है कि हर हमारे भारत के यूथ को एक बचपन से एक योद्धा बनाना, उस माँ को ये चीज़ करना है कि आप अपने बच्चे को जो आप साइकिल दे रहे हैं उसके साथ हेलमेट दें। अदरवाइज जो आज का युवा हेलमेट इसलिए नहीं पहनना चाहता क्योंकि पेरेंट्स ने शुरुआत ही नहीं किया। आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, कॉलेज में जा रहे हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम। क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को जब तक साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत न लगा दें, सुनिश्चित न कर ले, तब तक उसको ना दें। तो ये एक एक्सरसाइज है ये पेरेंट्स के अपने घर वालों को बचाने के लिए। तो इसमें आज हमारे देश की इंडियन आर्मी जो एक लड़ाई लड़ रही है, भारत की सरहदों की सुरक्षा कर रही है, और आर्मी मुझे कह रही है कि हेलमेट पहन, वेयर आर यू, कहाँ हो आप, यू कम बैक, मतलब वेरी फास्ट। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल पित्साल सिंह उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने के अंदर 8 पत्नियां मेरे सामने विधवाएं खड़ी हैं, किसी युद्ध में नहीं हमारे जवान मरे हैं, रोड एक्सीडेंट्स में, मतलब छुट्टी के दौरान जाने के बाद जो हेलमेट नहीं पहने हैं। तो दिस इज़ द बिग लॉस ये। तो कहने का पर्पस है कि आज इंडियन आर्मी को भी हेलमेट मैन की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे युवा जो कॉमन मैन है वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, बशर्ते उस दर्द को समझना है, उस लड़ाई को समझना है, इस अदृश्य युद्ध को समझना है। जो आर्मी आज दुश्मनों की हर चाल पे वो हमेशा अलर्ट है, वो किधर क्या चाल चल रहा है उसके लिए पूरी अलर्ट है। लेकिन हमारी सड़कों पर ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, हमारे देश की जनता ही अलर्ट नहीं है। तो ये किसी भी चीज़, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ या कोई भी, ये हर किसी के लिए ये लड़ाई लड़ने की और उसके चैलेंजिंग वाली चीज़ है, विषय है ये। हमारे देश के जो भी हैं मंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी देखिए, उन्होंने जिस तरीके से एक आवाज़ लगाई दिल्ली के लाल किला से स्वच्छता की, तो हर भारत के हर यूथ में, बच्चों में गया। तो एक आवाज़ है दुर्घटना की, जो इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए, सड़क दुर्घटना मुक्त भारत तभी हो सकता है जब भारत का हर नागरिक इस युद्ध की पहचान करके वो उसके लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि हर कोई सड़क से गुजर रहा है, सड़क हर किसी का मार्ग है, और ये साइलेंटली अदृश्य युद्ध है। यहाँ कोई भी नहीं जान सकता है कब किसका विकेट गिर जाए। तो ये ज़रूरी है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बल्कि हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, उन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक पूरी दुनिया से 50% सड़क हादसे कम करने का, तो उनका लक्ष्य अन्य देशों का पूरा हो रहा है। उनके ग्राफ बहुत नीचे आए, लेकिन हमारे इंडिया में ग्राफ नीचे आने का तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कम से कम हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मेरा यही है विजन है कि भारत का हर नागरिक इस युद्ध को पहचाने और ये लड़ाई लड़े। सर, तुम्हारा मिशन बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, और इसी मिशन में हमको भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो मूवी के साथ तुम्हारा मिशन भी थोड़ा फास्टली, रैपिडली दुनिया में चलता। अब आपका ही नाम चाणक्य है। Yes, तो आपका चाणक्य क्यों भाई? आपको पता था कि चाणक्य उस समय पे ऐसे चाणक्य थे, एक कॉमन मैन को, एक व्यक्ति को चुन करके उन्होंने मगध का एक राजा बनाना, सारा चीज़ें। तो एक रणनीति, मतलब बिना किसी हथियार की लड़ाई लड़ना, किस तरीके से उस बुद्धि से उस आहट को समझ जाना। तो उसी तरीके से हर नागरिक को एक चाणक्य बनने की ज़रूरत है। इस ऐसे विपत्ति को, संकट को पहचानने की ज़रूरत है, और वही चीज़ हमारे भारत के युवाओं में, नागरिक में कमी है। क्योंकि आजकल हर कोई देश को आज़ादी मिलने के बाद, पहले हम जब बचपन में थे तो चंद्रशेखर, भगत सिंह की सबकी तस्वीरें दीवारों पर हुआ करती थी। आज सिर्फ सरकारी दफ्तरों में दिखती है ये। भारत के युवा के अंदर वो जोश नहीं है कि हमें किस चीज़ से, तो जो लोगों को लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, आप नहीं, टेक्नोलॉजी विकास कर रही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे जो विनाश जो हो रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और उस तभी आप समझ पाएंगे, जिस तरीके से हमारे आर्मी को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से एक आर्मी की तरह भारत के परिवार के लोगों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, और चुप्पी तोड़ करके लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि आज कोई भी सड़क पर सामने कोई मरे या जिए, कोई पर्पस नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, वो इमोशन ही नहीं है कि सामने वाला मर रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं जिस तरीके से, ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं, तो वो इमोशन कहाँ चला गया? आज हम कुछ भी, एक लड़ाई की बात होती है, भारत पाकिस्तान की बात होती है, इमोशन ये सिंदूर का आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ऐसे चीज़ें, वो आग है। तो ये लड़ाई, मतलब हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए, लेकिन फिर भी ये कैसे चीज़ कर दिया। लेकिन हम हर दिन 500 लोगों को खो रहे हैं, चिताएं जल रही हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है, ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, अदृश्य युद्ध, बल्कि जो जितना जल्दी इसको समझ पाएगा वो उतना तेज़ी से भारत को एक विकास की रफ्तार दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అవర్ స్టూడియో. అండ్ మీ ద్వారా అయితే హెల్మెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాని సో మూవీ ద్వారా కూడా ఇంకా బాగా పరిచయం చేయబోతున్నారు నందకిషోర్ గారు.
సో మీకు కూడా స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది అందరూ వినాల్సిన బయోపిక్గా మీరు తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్.